Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. Our direct numbers once again are 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Government announces the scope of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme to help the MSME sector. Union Labour Ministry announces additional benefits for workers through ESIC and EPFO schemes. And foreign investors pull out over 1,700 crore rupees from the Indian markets in the month of May. सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र की सहायता के लिए आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का किया विस्तार। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने ईएसआईसी और ईपीएफओ योजनाओं के तहत श्रमिकों के लिए अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराने की घोषणा की। और विदेशी निवेशकों ने मई में भारतीय बाजारों से 1,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बाहर निकाली। In our top story, the centre today further expanded the scope of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme amid the economic disruption caused by the second wave of COVID-19 pandemic to aid micro, small and medium enterprises sector. The ministry said under the ECLGS 4.0, 100% guarantee cover will be extended to loans of up to 2 crore rupees given to hospitals, nursing homes, clinics, medical colleges for setting up on-site oxygen generation plants. The Finance Ministry said the interest rate has been capped at 7.5% for the same. It said civil aviation sector to be eligible under the ECLGS 3.0. The ministry said validity of the ECLGS extended to September 30 this year. Auto guarantees for an amount of 3 lakh crore rupees are issued. Disbursement under the scheme has been permitted to December 31st this year. The current ceiling of 500 crore rupees of loan outstanding for eligibility under ECLGS 3.0 will be removed, subject to a maximum additional ECLGS assistance to each borrower being limited to 40% or 200 crore rupees. The modifications in ECLGS would enhance the utility and impact of the ECLGS by providing additional support to MSMEs, safeguarding livelihoods and helping in seamless resumption of business activity. Our correspondent reports these changes will further facilitate the flow of institutional credit at reasonable terms. और अब हम स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे पहले कॉलर विजय का, जो चेन्नई से हमें फोन कर रहे हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। Good evening, Market Mantra team, and hello to Mr. Dhirendra. Good evening. Hello, Dhirendra Kumar, can you please explain to us, the regular SIP investor and so also thousands of others who are listening to this program, what is this terminology called XIRR? How do you, walk us through this terminology and how do you understand it as an SIP investor in the mutual fund industry? XIRR. Okay. You understand return, the total return. When you invest in something and you earn return, it is pretty straightforward when it comes to, a deposit.
you make on a specific date, and for a specific term you get a return. And it is easy to compute because you invest on a given day and you take your money out on a given day. Unlike that, the savings bank account in which you keep a balance and you get a 2.5% or 4% return, the interest on the different amount of money, because the money is not constant, the money keeps changing. You put some, you take out some, and the money which remains there for a term, the return is calculated and paid on that. Likewise for mutual fund SIP, when you start your SIP for 1,000 rupee and you keep carrying on, your first month, your 1,000 rupee goes at work, then another, your 1,000 rupee gets invested, next month another 1,000, next month another 1,000. So, and on any given day, your 1,000 rupees for the period minus, your first 1,000 rupees for the whole period, the next 1,000 rupees for the full period minus 1 month, so on and so forth. Computing return on this becomes difficult. For that, there is a formula. There's, for varying capital, amount of investment done for a cash flow, for a varying amount of time, the return generated on your investment is called internal rate of return. There's a formula for that. And the equivalent formula for that in Microsoft Excel, which is a very popular tool, which is a spreadsheet of Microsoft, which everybody uses. That formula is XIRR for calculating internal rate of return for a cash flow for a series of investment done at different period of time. So that is why it is being popularly referred as XIRR based on that. So it is internal rate of return, the real rate of return for a varying amount of money invested for different periods. Our next caller is R.N. Mathur from Noida. Warm welcome to the program. Please ask a question. And if you can remove the disturbance in the background, Mr. Mathur, we will be very grateful. हिरेन जी, आपका बहुत बहुत आभार और टीम को बहुत बहुत नमस्ते। मेरे 2 लाख लगाने 10-15 साल के लिए, तो 2 मैंने सोची, एक्सिस का ग्रेटर चाइना या पराग पारिक का फ्लेक्सी। अगर ये दोनों नहीं तो फिर आप कौन सा सजेस्ट करेंगे मुझे 2.5 लाख लगाने? नहीं, ये दोनों अच्छे फंड है, लेकिन मेरी हमेशा सलाह होती है कि आपको ऐसे फंड में पैसा लगाना चाहिए जहाँ पे पैसा ज्यादा डाइवर्स हो, और उस नजरिए से पराग पारिक का फंड काफी प्रॉमिसिंग है। उसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, और दोनों में थोड़ा बहुत, ग्रेटर चाइना में भी थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी के नजरिए से वो काफी बेहतर फंड साबित होता है। अगले कॉलर है दिल्ली से रिकी। रिकी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। नमस्कार। पूरी टीम को मेरी शुभ संध्या। धीरेन्द्र जी से मेरा प्रश्न है कि कृपया 4 डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के नाम बताएं जो सभी को लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। ढेर सारे फंड ध्यान में आते हैं, लेकिन मैं 4-5 आपके लिए गिनाता हूँ। एक्सिस का फ्लेक्सी कैप फंड, या कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप क्योंकि पहले मल्टी कैप हुआ करते थे, और जब इनका डेफिनेशन बदला तो उसके बाद से ये बहुत सारे फंड फ्लेक्सी कैप हो गए। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, SBI का फोकस फंड, या मिराई एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप, ये कुछ दिमाग रहने आते हैं। गाजियाबाद से गौरव है हमारे साथ। गौरव जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्ते, मेरा सवाल है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी, उसमें कैपिटल अगर आप 2 साल रखें 5 साल रखें, टैक्स 10% लगता है, क्योंकि उसमें कुछ इंडेक्सेशन वगैरह का बेनिफिट मिलता है, जैसे प्रॉपर्टी मिलता है। ऐसा इन्होंने क्यों नहीं रखा कि आदमी 1 साल रखा है या 5 साल रखा है, सबको उसी तलवार से काट रहे हैं, ये सवाल है। और दूसरा सर, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये डेट फंड में अभी कौन से फंड रिटर्न दे सकते हैं? कोई भी शॉर्ट टर्म फंड सब बेकार कर रहे हैं सर, आर्बिट्राज भी कोई ज्यादा नहीं अच्छा कर रहा है। आप कौन से फंड को रिकमेंड करोगे और डेट फंड में से जिसमें थोड़ा सा रिटर्न बेटर मिले? थैंक यू। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और सरकार से मेरी भी यही शिकायत है। किसी भी कैपिटल एसेट में इंडेक्सेशन का प्रावधान है, डेट फंड में है, बाकी सब में है, इक्विटी में नहीं है। और इसके बारे में जब ये बदलाव आया था, जब हमारे टैक्सेशन रूल्स में,
तो मैंने बहुत बार लिखा था, काफी बार बताया था, हर टेलीविजन के चर्चा में भी इसकी चर्चा की थी। मेरी भी शिकायत है और ये शिकायत मुझे लगता है काफी वाजिब है, सरकार का भी सुनेगी। और अभी जो इंटरेस्ट रेट का आउटलुक है वो बड़ा ही मिक्स है। हो सकता है यहाँ से और ब्याज दरें न कम हो और शायद कभी बढ़ भी जाए। और अगर आर्थिक स्थिति में सुधार आता है, फिलहाल अभी और गिरावट का दौर शायद बहुत भारी उम्मीद ना हो, लेकिन क्योंकि काफी रफ्तार से गिरा था, यहाँ पर आप ज्यादा रिटर्न की उम्मीद न रखें। ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में यहाँ नुकसान हो सकता है। और क्योंकि ब्याज दरों में भारी गिरावट हुई है, उसी का ये नतीजा है कि आपको रिटर्न कम मिल रहा है। और इन कम रिटर्न से ही आपको संतोष करना चाहिए। कुछ अच्छे फंड अगर मुझे गिनाने हो जिसमें कि रीजनेबल रिटर्न मिल जाता है, ज्यादा रिस्क लिए बगैर, और जहां रिस्क की संभावना नहीं है, जहां पे कैपिटल इरोजन की संभावना नहीं है, क्योंकि अगर ब्याज दरें बढ़ी तो फिक्स्ड इनकम फंड में नुकसान भी होगा। उससे बचने के लिए शॉर्ट टर्म फंड में ही निवेश करना चाहिए। Next caller is Ratnakar from Mumbai. A warm welcome to you. Please ask a question. Ratnakar ji, can you hear us? Yes, sir. Sir, please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि 2018 में 2018 में मैं रिटायरमेंट के बाद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जी। तो अभी 3 साल हो गए, तो अभी मैं रिडम्पशन करने के लिए कितना % मेरा प्रॉफिट यानी कितना होना चाहिए एज पर फाइनेंशियल टारगेट, व्हाट शुड माय प्रॉफिट नाउ? एंड मैं कितना 25-30% समझो मेरा प्रॉफिट है, तो मैं अभी रिडम्पशन कर सकता हूँ क्या? ये एक सवाल है। और उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेट कैसी रहेगी? पूरी तरह निर्भर करता है कि आपने किस फंड में इन्वेस्ट किया है। अगर आपने किसी डेट फंड में इन्वेस्ट किया है या फिर किसी ऐसे डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, एक ऐसा फंड जिसमें कि एक छोटा भाग फिक्स्ड इक्विटी में लगा हो, बाकी डेट में लगा हो, तो उसका ट्रीटमेंट अलग से होता है। 3 साल के होल्डिंग के बाद जो भी मुनाफा हुआ है, उसके इंडेक्सेशन के बाद जो फायदा है, उस पर आपको केवल टैक्स देना पड़ेगा। और उस इंडेक्सेशन के बाद जो मुनाफा हुआ है, उसका 20% टैक्स आपको फिक्स्ड इनकम में लगता है। और इक्विटी में जो अगर आपने इक्विटी में लगाया है, तो उससे होने वाला फायदा, 1 साल से ज्यादा का जो फायदा है, उस पर 10% टैक्स लगता है। 1 साल से कम के फायदे पे 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। कितना आपको रिटर्न होना चाहिए, ये मुझे लगता है कि आपके निवेश से इससे सारा पैसा नहीं निकलना चाहिए। आप देखिए कि आपको कितने सप्लीमेंट्री आमदनी की जरूरत है, जिससे और उस जरूरत के हिसाब से जरूर पैसा निकालें। और आपका पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके निवेश पे, संतोषजनक निवेश पे रिटर्न ये होगा कि आपको महंगाई से ज्यादा रिटर्न मिल रहा हो, ताकि आपका पैसा कम ना हो रहा हो। और दूसरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो आपकी जरूरत है, अगर या पार्शियल जरूरत है, वो अगर आपका फुलफिल हो जाता है, तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और अगर वो नहीं है, अगर उतना रिटर्न नहीं है, तो ये संतोषजनक नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको रिटर्न बढ़ाने की कोशिश, आपको देखना चाहिए कि और कौन से विकल्प है जहाँ पे रिटर्न बढ़ाया जा सकता है, या किस तरह से अपने खर्चे को कम किया जा सकता है। यही 2 विकल्प है। अगले कॉलर है दिल्ली से RS दिया जी, आपका स्वागत है। सवाल पूछें। आपसे रिक्वेस्ट है अपना। नमस्कार जी नमस्कार। अपना जो टेलीफोन, आपका जो रेडियो है, उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए। ओके। हेलो जी पूछिए। मैम, मार्केट मंत्रा की टीम को नमस्कार। जी नमस्कार। My question to Dhirendra ji is that like in case of a property, if you sell a property and buy another property, there is no long-term capital gain. Whereas if you sell the shares or mutual fund scheme after 1 year, there is a capital gain. If a person reinvests that amount after selling the share or after selling the equity scheme and buys another scheme, logically there should be no long-term capital gain. Now the investor is paying the security transaction tax, stamp duty, long-term or short-term capital gain,
who is going to represent the viewpoint of the investor? It is a big discouragement and very heavy burden on the investor. Yes, unfortunately, investors don't have a voice in terms of who is going to make a representation, and government has a need to raise taxes or introduce new taxes. And we saw the introduction of the new tax, which is there was when long-term capital gains was introduced on equity, or after many years, it was being talked about that why tax this capital gains, because at one level the corporate taxes, which at a certain level is taxed, because when companies make profit, it is taxed at that stage itself. That was the time when even the dividend was, there was a dividend distribution tax. So even sharing of those profits post-tax by a company was subject to tax. Now that your dividend income is also taxable, and likewise capital gains. Unfortunately, I agree with you. Investors don't have a voice. नेक्स्ट कॉलर इज भारत नरूला फ्रॉम गुरुग्राम. भारत जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है. सवाल पूछिए. Actually, I invested in जी सवाल पूछिए. last year in ICICI Prudential. All three funds are of ICICI Prudential. One is the bank, one is blue chip fund, and one is equity and debt fund. Now I have redeemed portion of these funds exactly after 1 year, in fact more than 1 year. I want to know what tax fee applicable on these three funds. And there is one fourth fund which is ICICI Prudential Asset Fund of Fund. Now I intend to redeem portion of these funds also. I want to know what tax treatment would be there for. धीरेन्द्र जी, आप सुन पाए उनके जो फंड्स के नाम उन्होंने बताए? जी हाँ, मैं एक पहला सुन पाया जो कि ब्लू चिप फंड था, तीसरा सुन पाया, दूसरे वाले का मुझे नहीं समझ में आया ना. शायद इनके लाइन में कुछ He mentioned about ICICI Prudential Blue Chip, then he mentioned about हाँ, पहला वाला फंड ICICI Prudential Blue Chip फंड था. दूसरा वाला फंड शायद ICICI Prudential Equity and Debt फंड था. और तीसरा वाला शायद ICICI Prudential फंड ऑफ फंड था. जी, तीसरा वाला जो फंड ऑफ फंड है उसका ट्रीटमेंट उसका टैक्स ट्रीटमेंट डेट फंड की तरह किया जाता है. जैसे आप 3 साल तक होल्ड करेंगे और उसके बाद जो आपका मुनाफा है उस पर टैक्स लगता है इंडेक्सेशन के बाद. जो आपका दूसरा डेट और इक्विटी फंड है वो निर्भर करता है कि इस पे किस तरह का टैक्स ट्रीटमेंट, इसका इक्विटी और डेट का एलोकेशन किस तरह का रहा था. फिलहाल ये इसका डोमिनेंस अधिकतर पैसा इक्विटी में लगा हुआ है, 80% इक्विटी में लगा हुआ है और थोड़ा पैसा डेट में लगा हुआ है. और इसका नियम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर आपके निवेश के समय सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है निकालते समय, तो इसका ट्रीटमेंट इक्विटी की तरह होता है. अगर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है तो ये डेट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है. और मेरे ख्याल से इसका ट्रीटमेंट फिलहाल अगर आप निकालते हैं, पार्शियल भी निकालते हैं, तो इसका अधिकतर पैसा इक्विटी में लगा हुआ है और उसी तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए. और ब्लू चिप तो इक्विटी फंड है. शायद मैं आपका आंसर कर पाया हूँ पूरे आपके सवाल का. अगले कॉलर है दिल्ली से कुलभूषण. कुलभूषण जी, आपका स्वागत है. सवाल पूछें. जी, सबको नमस्कार. नमस्कार. मेरा क्वेश्चन है कि किसी भी एक ट्रेडिंग डे में वेबसाइट्स में इंडेक्स का, चाहे वो सेंसेक्स है या निफ्टी है, उसका ग्राफ 10 बजे से लेके 3:30 बजे तक का एक ग्राफ डिस्प्ले करते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि 10 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक, 3:15 बजे तक वो अच्छा खासा पॉजिटिव में चल रहा होता है और एकदम से वो आखिरी के 15-20 मिनट में रिवर्स हो जाता है. तो आखिरी के 15-20 मिनट में ऐसा क्या होता है कि सारा दिन की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाती है? थैंक यू. बाजार बहुत सारे निवेशकों की सोच रिफ्लेक्ट करता है. तो आखिरी समय में बाजार बंद होने के समय लोगों का, बहुत सारे निवेशकों का एग्रीगेट तरीके से मन बदल जाता है. उसी का वो रिफ्लेक्शन है. और खासकर जब आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो सेंसेक्स में 29 कंपनियों के लिए या निफ्टी के 50 कंपनियों के लिए निवेशकों का मन बदल जाता है
जब बाजार बंद होने वाला, और यही बाजार का उतार चढ़ाव जो कि बड़ा एक्साइटिंग है और जो कि बड़ा खतरनाक है, इस तरह का वोलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो लोगों का, बहुत सारे निवेशकों का अचानक मन बदल जाना ये बाजार के इस बदलाव का रिफ्लेक्शन है। Next caller is Krishna Murthy from Chennai. A warm welcome to you in the program, sir. Please ask your question. Yeah, Mr. Dhirendra, thank you for your very enlightening replies. I have a question on TDS on dividend. From 2020, dividend became taxable in the hands of the shareholder. Yeah. TDS was deducted. But many senior citizens like me who don't have taxable income, they'll have to, in order to claim the refund, they'll have to file a return of income. But in the 2021 finance bill, I believe that provision was removed and TDS need not be deducted from dividend. Can you enlighten me on this, Mr. Dhirendra? Thank you. Yes. No, to my understanding, even on mutual fund, there was never a provision of tax deduction at source, the TDS. The withholding tax on investments was never applicable, even in only now, and that was applicable for deposits and all. And I think it remains a deposit, remains applicable till you give a declaration under some section for exemption. Otherwise, on mutual fund and all other investments, there's no TDS. अगले कॉलर है जयपुर जी। अगले कॉलर है जयपुर से जितेंद्र जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ, पहले तो मार्केटिंग मंत्री की टीम को नमस्कार मेरा, और धीरेन्द्र जी को भी। सर, मेरा प्रश्न ये दो है। एक तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनी है, जैसे SBI, आदित्य बिरला, टाटा, हम इसमें से किसको सिलेक्ट करें? और दूसरा प्रश्न कि अगर हम कोई फंड सिलेक्ट करते हैं, जैसे इक्विटी इंडेक्स फंड करते हैं, तो इसका फंड मैनेजर के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं इसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसे है? किसी कंपनी के किसी खास कंपनी के फंड को चुनने के बजाय एक अच्छे फंड में निवेश करें और एक उपयुक्त फंड में निवेश करें। आप देखिए, और सबसे पहला सवाल फंड चूज करने के पहले कि किस तरह का फंड आपके लिए उपयुक्त है। अब पहले अपने आप से सवाल पूछे कि ये आप पैसा कितने दिनों के लिए लगाने वाले हैं। अगर ये पैसा कुछ दिन का है तो अलग तरीके का फंड में आपको निवेश करना चाहिए। कुछ महीने का है तो दूसरे तरीके का फंड होगा। कुछ साल का है और लेकिन आप निश्चित तौर पे ये पैसा आपको 1-2 साल में जरूरत पड़ेगा, तब भी अलग तरीके का फंड आप उसके लिए उपयुक्त है। और कई सालों का निवेश जिसकी कि आपको फोर्सिएबल फ्यूचर में जरूरत नहीं है और आप चाहते हैं कि ये पैसा बढ़े रफ्तार से और आप उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, उसके लिए भी अलग अलग है। अगर और इसके अलावा मैं चाहूंगा कि बहुत सारे निवेशक जिन्होंने पहले कभी नहीं निवेश किया है, उनको लंबे समय का पैसा भी कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करना चाहिए। जिन लोगों ने उतार चढ़ाव देखा है 2-3 साल और उसके बाद उन्हें समझ में आ गया कि उतार चढ़ाव होता है, जिससे उन्हें घबराहट नहीं होती और इसलिए वो और बेहतर रिटर्न के लिए ये उतार चढ़ाव को वो विथस्टैंड कर पाते हैं, तो उसके लिए अलग अलग निवेश चाहिए। तो इस नजरिए से अपने फंड का चुनाव करें और उपयुक्त कैटेगरी में जो जब ये आप निर्धारित कर लें तो उस कैटेगरी के अच्छे फंड का चुनाव करें। म्यूचुअल फंड पे सारी जानकारी के लिए बहुत सारे, एक तो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है जहाँ पे हर एक फंड पे एक फैक्ट शीट उपलब्ध है। ये सेबी द्वारा प्रावधान किया गया है कि हर एक फंड पे एक, और ये 5-7 तारीख तक ये अपडेट होके वहां पे उपलब्ध होता है। उसके अलावा हमारी जैसी वेबसाइट है, जैसे वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन की वेबसाइट है, जहां भारत के हर एक म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन, उसका परफॉर्मेंस और सारी जानकारी रोज अपडेट किया जाता है और ये वहां पे उपलब्ध है। और जहां से फंड मैनेजर कौन है, कब से है और क्या क्या वो कौन कौन सी फंड मैनेज करता है, इसकी जानकारी भी वहां आप आसानी से उपलब्ध है और ये हमेशा अपडेट होता रहता है। और रोज यहाँ पे रोज रात में यहाँ पे परफॉर्मेंस हर एक फंड का, और हर महीने जब इनका पोर्टफोलियो बदलता है, फंड मैनेजर ने क्या खरीदा, क्या बेचा और उसका रिफ्लेक्शन वो यहाँ पे उपलब्ध है। Next caller is Sonu Priyadarshi from Shillong. Warm welcome to you on the program. Please ask a question. जी अर्जुन जी नमस्कार, मैं सोनू प्रियदर्शी बोल रहा हूँ शिलोंग से। और मेरा एक सवाल है म्यूचुअल फंड से संबंधित। जी सर, ये सवाल ये है कि ये जैसे हम लोगों ने, मैं एक जॉब होल्डर हूँ और अभी मुझे 3 साल हुए जॉब करते हुए, मैंने टैक्स सेविंग फंड मैंने चूज किया है एक्सिस लॉन्ग टर्म डायरेक्ट ग्रोथ का। जी क्या उसके अतिरिक्त हम और कोई फंड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ये ऑनलाइन ब्रोकर है जैसे ग्रो
या जीरोधा, ये कितनी विश्वसनीय है, इसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, अधिकतर जो ब्रोकर है वो विश्वसनीय है। आपने देखा होगा कि जब आपने एक्सिस टैक्स सेवर में पैसा लगाया, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो कि उनका टैक्स सेविंग फंड है, ये एक बेहतरीन फंड साबित हुआ है कई सालों से। और मुझे लगता है कि जब तक आपको कोई दूसरे विकल्प की जरूरत नहीं है, अगर आप सालाना 1.5 लाख रुपए लगाते हैं जिससे आपको टैक्स की छूट मिल पाती है, तो फिलहाल जब तक ये फंड प्रदर्शन अच्छा है, बल्कि उतार चढ़ाव के बावजूद इसका काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, तो यहाँ पे अपना निवेश आपको जारी रखना चाहिए। ग्रो या जीरोधा या ढेर सारे वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन ब्रोकर है जो कि विश्वसनीय है, लेकिन यहाँ पे विश्वसनीयता और आपको नुकसान नहीं होगा, दोनों में अंतर है। ये यहाँ पे आप हर तरह का मार्केट रिस्क है। अगर आप बाजार में बहुत रफ्तार से खरीदे बेचे और आप अगर समझदारी या अगर आपके पास राइट टेम्परामेंट नहीं है, आप पैसा लगाएं और उसके बाद 5% गिरावट के बाद आपको घबराहट हो और आप उसके बाद अपना पैसा निकाले, तो नुकसान होना एक अलग बात है। बाजार के नुकसान से आप पूरी तरह एक्सपोज्ड है और उससे बचने के लिए आपको पहले जानना चाहिए कि आप क्यों निवेश कर रहे हैं, कहाँ निवेश कर रहे हैं और क्या आपके पास टेम्परामेंट है उस उतार चढ़ाव को झेलने का। और जहां तक इनके डिजाइन और स्ट्रक्चर की बात है, मुझे लगता है ये काफी विश्वसनीय है, लेकिन और यहाँ पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एक इन्वेस्टर के लिए एक गारंटीड फंड है। लेकिन पिछले दिनों 2-3 जगह ऐसी कई ब्रोकर निवेशकों का पैसा गबन करके और अभी भी बहुत सारे निवेशकों का ये रिजोल्यूशन नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के ये ब्रोकर है और बहुत सारे बड़े ब्रोकर भी हैं जहाँ पे ब्रोकरेज लगता है और वो क्रेडिबल सेटअप है जहाँ पे इस तरह की चीजों की आशंका नहीं है। स्टेट बैंक भी ये आपको सुविधा प्रदान करता है, HDFC बैंक भी करता है, ICICI बैंक का स्पॉन्सर्ड या उनकी रिलेटेड कंपनी एक ICICI सिक्योरिटीज है जिसका की ऑनलाइन ब्रोकर है ICICI डायरेक्ट। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि जो वो गबन वाली स्थिति थी स्टॉक ब्रोकर से द्वारा, वैसी स्थिति इनके साथ होनी चाहिए। और ये ग्रो और जीरोधा में भी मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसी होगी, लेकिन ये एक रिस्क है। अगर आपका ब्रोकर आपके पैसे को गबन करने में अगर हो जाए, तो रेगुलेटर ने बहुत इन चीजों का प्रावधान किया है। आपको रोज SMS भेजा जाता है जब भी आपके डीमैट अकाउंट से जब भी कोई सिक्योरिटीज अगर निकलता है या वहाँ पे आपने कुछ खरीदा और उसमें आपका सिक्योरिटीज आया कि नहीं। समय बहुत ही कम रह गया है धीरेन्द्र जी, तो हमें अभी चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And let's proceed now with the second headline story. The Ministry of Labour and Employment has announced additional benefits for workers through ESIC and EPFO schemes to address the fear and anxiety of workers about the well-being of the family members due to increase in incidences of death due to COVID-19. Now it has been decided that all dependent family members of IPs who have been registered in the online portal of the ESIC prior to the diagnosis of COVID disease and subsequent death due to the disease will be entitled to receive the same benefits and in the same scale as received by the dependents of insured persons who die as a result of employment injury. उधर मई में विदेशी निवेशकों ने लगातार दूसरे महीने भारतीय पूंजी बाजारों में शुद्ध बिकवाली की और 1700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बाहर निकाल ली। अप्रैल के दौरान भारत के इक्विटी और ऋण बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 9,435 करोड़ रुपए की कुल राशि निकाली थी। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार पहली मई से 28 मई की अवधि में विदेशी निवेशकों ने इक्विटी श्रेणी से 3,375.2 करोड़ रुपए बाहर निकाले। हालांकि इसी दौरान ऋण श्रेणी में उन्होंने 1,645.8 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे भारतीय पूंजी बाजारों से बाहर विदेशी निवेशकों का मई में कुल शुद्ध प्रवाह 1,729.4 करोड़ रुपए रहा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। And before we close, a reminder of the headlines. Government enhances scope of the Emergency Credit Line Guarantee Scheme to help the MSME sector. The Union Labour Ministry announces additional benefits for workers through ESIC and EPFO schemes, and foreign investors pull out over 1,700 crore rupees from the Indian markets in the month of May. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.